Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. My dear children, whatever the exam conducted, unit 2nd, the question paper, interaction of question paper will be explained. One or more than one question within 20 minutes. It will be explained. IRR Tripathi from LPM Public School Gola Bazar is going to interact this question. Just try to dissolve the fact with interacting explanation of the question answer. Whatever the mistake you have mistaken, my dear children, try to dissolve the fact and try to dissolve the steps adopted in solving the questions in your board examinations or in your copy. That should be neat and clean, my dear. So now the question number first I am going to read and try to dissolve the fact both Hindi and English. Bilingual explanation will be given for the sake of you. So now come to the point. Question number 1 given. Ivan withdrew a fixed amount at the end of each quarter. Each quarter the amount was withdrawn by the Ivan. If this one is the condition in second line that is given. If interest on his drawing during 2019-20 at the rate of 10% per annum amounts to rupees 3,000. Whatever the interest for the whole drawing that is given in the information, remember, then find the amount of his quarterly drawings. We have to calculate the quarterly drawing amount, whatever the amount withdrawn by the Ivan quarterly, we have to calculate that one. This one is the explanation of English. In Hindi, Ivan एक पार्टनर है किसी फर्म में, वो अपने निजी खर्च के लिए क्वार्टरली कुछ अमाउंट निकालता है. एंड ऑफ एट क्वार्टर मतलब क्वार्टर के जो चौथा महीना आता है उसके अंत में, जो तीसरे महीने के अंत में, क्योंकि 12 महीने का साल होता है और एक क्वार्टर जो होगा 3 महीने का होगा. 12/4 क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 12/4 3 महीने का मतलब 4 क्वार्टर में एक होल ईयर होगा. 3 महीने का एक मंथ होता है बेटा. और कह रहा है ये 3 महीने के अंत में कुछ अमाउंट वो निकालता है जिसका पूरे साल का अमाउंट का इंटरेस्ट जो होता है बेटा वो होता है आपका 3,000 रुपये और रेट है 10%. अब ये पूछ रहा है कि प्रत्येक क्वार्टर को वह कितना निकाला, मतलब चारों क्वार्टर में कितना. बच्चों ने आपने गलती क्या किया है, वॉट एवर द मिस्टेक मेड बाई यू, जस्ट यू हैव calculated the drawing of 3,000, interest calculated at the rate of 10%. But try to dissolve the fact, whatever the information given in the question, my dear, उसके अनुसार आपको करना होगा. According to the information, just the step taken. Now see at the blackboard, question number part A first. Here you can see question number first. Now information given, interest on drawing, given is equal to 3,000.
You can see over here. And rate is equal to 10%. ड्राइंग क्वार्टरली है, आप ये भी जान रहे हैं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ के अंत में, एट द लास्ट ऑफ 3rd month, एट द एंड ऑफ द मंथ he withdrawn some certain of the amount. So how will you solve the question whatever the amount withdrawn by the Ivan quarterly? So first we have to write the formula this way. Interest on drawing is equal to interest on drawing is equal to total drawing into rate upon 100 into time interval, मीन्स टाइम इंटरवल कितने कितने का इंटरवल है, 3-3 महीने का है, तो एट द एंड है, जब टाइम इंटरवल ये होता है, एंड होता है तो माइनस और बिगनिंग होता है तो प्लस। 3 महीने का टाइम इंटरवल है, 12 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1/12, ये फार्मूला हो गया आपका। अब आपको इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिला हुआ है, इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिला हुआ है ये देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 3000 इक्वल टू टोटल ड्राइंग आपको नहीं मालूम है, सर्वप्रथम हम टोटल ड्राइंग निकालेंगे, तो नहीं मालूम है इसको x कर दिया। रेट आपको मालूम है 10/100 इंटू 12 माइनस 3 इक्वल टू 9/2 इंटू 1/12। अब ये कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 3000 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं x1 इंटू 3x अपॉन 10 2 जा 20, 24 जा 80। ये समझ गए होंगे आप। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लें। 3x इक्वल टू 3000 इंटू 80, x इक्वल टू, अब इसका आप 3 से डिवाइड कर दें, x इक्वल टू हो गया टोटल ड्राइंग 80,000, ये पूरे साल की हो। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये कहा रहा है कि एक क्वार्टर में एंड में कितना निकालता है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 80,000 डिवाइडेड बाई 4, 80,000 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 20,000। इवांस क्वार्टरली ड्राइंग इक्वल टू ₹20,000। इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा, KPH शेयर प्रॉफिट इन ए पार्टनरशिप फॉर इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब यहां पर हम लिख रहे हैं, इधर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यहां पर हम आपको इसको बता रहे हैं, KPH 3 पार्टनर है, KPH 3 पार्टनर है, इनका आप देखेंगे कैपिटल शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इनका है बेटा, यहां पर लिख देता हूं मैं,
थोड़ा और दूरी बना करके, ताकि आपको अच्छे ढंग से दिखाई पड़े। ये देखिए 3 पार्टनर के, पी और एच, ये 3 पार्टनर है। इनका रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपका क्वेश्चन में दिया गया है 5:3:2 का। जो शेयर करते हैं प्रॉफिट को 5:3:2। फिक्स्ड कैपिटल इनकी है, कैपिटल जो है वो है 40,000, 30,000 और उसके बाद 10,000। ध्यान देंगे आप, 40,000, 30,000 एंड 10,000। अब क्या है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है। फर्म अर्न प्रॉफिट 6,000, प्रॉफिट 6,000, प्रॉफिट इक्वल टू 6,000। जो फर्म प्रॉफिट अर्न किया है वो है आपका 6,000। अब ये कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू के, पी एंड एच रिस्पेक्टिवली। अब हमें वो अमाउंट कैलकुलेट करना है कि के, पी और एच कितना उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू 40,000 का 10% 4,000, के का हो गया 30,000 का 10% 3,000, पी का हो गया और 10% के हिसाब से 10,000 का 10% 1,000 आपका, आप देखेंगे किसका हो गया, एच का हो गया। अब हमारे पास प्रॉफिट केवल 6,000 रुपए का है और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर का मिला करके 4, 3, 7, 8,000 रुपए हो गए। तो 8,000, हम तो 6,000 ही कमाए हैं, ब्याज 8,000 कहां से देंगे? तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, जो प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट में, उसका ये मतलब होता है कि यदि प्रॉफिट, वेदर द प्रॉफिट इज लेस देन द अमाउंट प्रोवाइडेड to the partner as remuneration or interest on capital, as salary or commission, that one is distributed amongst the partner in their particular ratio, whatever the amount received by them. In हिंदी, यदि इस तरह का प्राविधान होता है, यदि प्रॉफिट कम होता है तो एक्ट के अनुसार, जो नियम है कानून के अनुसार, उस अमाउंट को I/2 से 6,000 को, चूंकि हमारा ब्याज जो हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 8,000 का हो रहा है, तो 8,000 तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि फर्म ने 6,000 रुपए ही कमाया है। तो इस 6,000 रुपए को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, इसी रेशियो में जो ये पाने वाले हैं, जो रिसीव करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पेबल होगा, उसी रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मतलब 4,000:3,000:1,000, आई मीन टू से 4:3:1 के रेशियो में। अब हम शेयर निकालते हैं के का।
शेयर ऑफ के, यहां पर देखें शेयर ऑफ के का होगा तो आपका 6000 है। केज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, केज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू वॉट एवर द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म 6000 इंटू 4 plus 3 plus 1 is equal to 8. 4 by 8. 4 by 8 is equal to 3000. Means जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल होगा के को वह 3000 होगा। अब उसी तरह से आप पी का निकालेंगे। पीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल, पीज interest on capital is equal to 6000 into 3 by 8 is equal to कैलकुलेट कर लेंगे 750 3 जा 2250 रुपीज, 2250 रुपए। अब आप निकालेंगे किसका, एक्स का, एक्स शेयर, एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल टू एक्स इक्वल टू 6000 into 1 by 8 इक्वल टू 750। तो ये आपका आंसर होगा। 3000 पेबल होगा के को, एच को 2250 और पी को 2250, एच को 750 रुपीज। ये इस तरह से सॉल्यूशन बनेगा। आप फटाक से करेंगे, आपको 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा बोर्ड में आता है। जरा सा ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को सुंदर ढंग से उसे समझेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। एक बार पुनः इन दोनों क्वेश्चन को देख लें हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। पहले क्वेश्चन में है ईवान जो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो ईच क्वार्टर निकालता है और इंटरेस्ट पूरे साल का 3000 है। चाहे तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब वो फार्मूला एडॉप्ट करेंगे, रेट 10% पर एनम है और वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम इंटरवल अपॉन 2 इनटू 1/12। वो फार्मूला हमने लिख दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 दिया गया है, टोटल ड्राइंग हमने x सपोज कर लिया, x मान लिया, इनटू 10 अपॉन 100, 12 माइनस 3, टाइम इंटरवल 3-3 महीने का होता है जब क्वार्टरली है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक क्वार्टर में 3 महीना होगा। 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1/12। अब आया आपका 3000 इक्वल टू 3x अपॉन 80। इसको सॉल्व करने पर x इक्वल टू आ गया 80,000। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्वार्टरली कितना निकालता है, तो 80,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, तो 20,000 रुपए ये आंसर। दूसरे क्वेश्चन में ये कहा गया है के पी एच 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:3:2 का है, कैपिटल इनकी 40,000, 30,000 और 10,000 रुपए। ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है पार्टनरशिप। फर्म जो है प्रॉफिट कमाई है 6,000 रुपए का, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेबल होगा ये पूछा जा रहा है। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये प्रोविजन में दिया गया है कि यदि प्रॉफिट
जो पार्टनर्स को पेबल है अमाउंट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे सैलरी है, चाहे कमीशन है, उससे कम होता है, तो जो वो पाते हैं उसी रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो पहले इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया गया 4000, 3000, 1000, तो पूरा टोटल इंटरेस्ट आपका 8000 हो रहा है, जबकि प्रॉफिट जो है हमारे पास 6000 है। इसी में से हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये गेन कर रहे हैं, जो ये प्राप्त कर रहे हैं, जो इनको पेबल है, उसका रेशियो निकाल लिए 4:3:1 का। तो अब 4:3:1 में इनका पेबल जो होगा, के का शेयर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 इंटू 4/8, 3000 पेबल होगा, पी का होगा 6000 इंटू 3/8, 2250 रुपए, और एच का होगा 6000 इंटू 1/8, 750 रुपीज। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस को, पूरा क्वेश्चन पेपर का हम सॉल्यूशन वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।